Hello everyone, welcome to Study and Fix. So today we are going to discuss about one of the famous poem America by Edgar Lee Masters. Let us know some facts about Edgar Lee Masters. Edgar Lee Masters' lifespan was between 1868 to 1950. He was an American poet, biographer, dramatist and lawyer, and he was best known for his groundbreaking work Spoon River Anthology in 1915. So the anthology is the collection of many poetries and it is published in a form of a book which had happened in 1915. So Edgar Lee Masters born in Garnett, Kansas and raised in Illinois. Masters drew inspiration from small time life, particularly the cemetery and community of Lewistown, Illinois, which deeply influenced his writings. His literary style often employed epigraphs. So epigraphs are the short quotations or saying which are spoken or written at the end of a book or a chapter, which is intended to suggest its theme. And he also wrote epigrams. These are also the short poems, especially a satirical one with a witty or indigenous endings. Lee Master was poignant in poetic monologues spoken by the fictional deceased residents of town of Spoon River. His innovative format gave voice to the hidden lives, targets and secrets of ordinary people, challenging the idealized image of rural America. So he was a writer of the common people और इन्होंने लोगों की ही कॉमन लोगों की आवाज को आगे रखा. Beyond Spoon River Anthology, Master authored over 20 books of poetry, 6 novels, 12 plays, and several biographies. And biographies include very famous names. वो नाम है Abraham Lincoln, Mark Twain, and Walt Whitman. He also practiced law in Chicago, notably partnering with famed attorney Clarence Darrow for a time. Despite of his literary success, Master faced personal and financial difficulties later in life and died in poverty in 1950. So this is about the Edgar Lee Master. Let us move to the poem and learn it stanza by stanza. So here are the lines. Glorious daughter of time, thou of the mild blue eyes. So here the America को एक personify किया as a noble and beautiful women, right, which is born of the history. और डॉटर ऑफ टाइम दिस इज द बेसिकली जेंटल एंड इनोसेंट आइज को उनके रिप्रेजेंट करता है. सो दाउ ऑफ द वर्जिनल फोरहेड, सो दाउ ऑफ द वर्जिनल फोरहेड पैरिड अनफोरवर्ड ऑफ टीयर्स. सो यानी कि जो उनका जो फोरहेड है वो वर्जिनल है. पैरिड मतलब पीला, जैसे जो साफ दिख रहा है पीला यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत क्लीन फेस है. अनफोरवर्ड ऑफ टीयर्स मतलब कोई स्कार नहीं है, चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है. सो बेसिकली कोई निशान नहीं है टीयर्स के भी. सो इट सेज द हर फोरहेड इज अनटच्ड बाय सोरो, मतलब कोई सोरो नहीं था अमेरिका के फेस पर, क्योंकि हम अमेरिका की रेफरेंस पे पूरी पोएट्री जाएगी. तो इट इज सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड यूथ. दाउ ऑफ द स्ट्रॉन्ग वाइट द हैंड्स विद द फिंगर्स डिप्ड इन द डाई ऑफ द ब्लड दैट क्विकेंड फादर ऑफ दी. ये आपको बहुत सारे इसमें जो वर्ड्स हैं जो दाओ दी दाइन इस तरह के जो सामने मिलेंगे. तो दाओ का मतलब यहाँ पर यू से है, मतलब ये अमेरिका को रेफरेंस कर रहा है एज ए सिंस अमेरिका हैज़ बीन पर्सोनिफाइड हेयर. तो ये आर्काइक लैंग्वेज है, ठीक है. तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, अदरवाइज ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा. सच लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन नाउ डेज. ये बहुत पुराना टाइम की एंशियंट लैंग्वेज है. सो वंस अगेन आई रिपीट दिस लाइन. Thou of the strong, while the hands with the fingers dipped in dye, of the blood that quickened fathers of thee in the ancient years. मतलब अब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये वो जो फिंगर्स हैं जो हालांकि जो स्ट्रॉन्ग है, दोज आर वेरी हैंड्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिंगर्स डाई में भीगी हुई हैं, डिप हो रखी हैं. अब व्हाट इज दैट डाई? डाई इज द ब्लड ऑफ फादर्स ऑफ दी, मतलब हमारे इसके खुद के जो पिताजी जो इनके एंसेस्टर्स थे उनके खून में ये चीज़ें उंगलियां रंगी हुई हैं. बट अभी कहाँ से आता है? देखो जब भी कहते हैं कि जो हैंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो इट सेज हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड प्योर, लेकिन जो स्टेन दिखा रहा है इट इज़ अबाउट कि जो ब्लड से जो रंगे हैं
वो किस लिए रंगे हैं कि जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिनके उनमें उसमें जाने भी चली गई। लीव दाउ द पाथ ऑफ द बीस्ट, रिटर्न दाउ अगेन टू हिल्स। तो यहाँ पर जो इन लाइनों को कहा गया है, अ कॉल टू अबेंडन द वायलेंस एंड सेवेजरी इज देयर, मतलब हमने उन बीस्ट वाले जो जानवरों वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ना है। मतलब क्या है इसमें, यहाँ पर है कि जो 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 बीस्ट से जो यहाँ प्रेजेंट किया गया है कि हमने वी नीड टू अबेंडन व्हाट, वायलेंस को छोड़ना है, मारकाट को छोड़ना, सेवेजरी को छोड़ना है, ठीक है, जो पाथ ऑफ बीस्ट कहलाता है। एंड रिटर्न टू मोर नेचुरल पीसफुल स्टेट, यहाँ पे अगेन टू द हिल्स, रिटर्न टू अगेन टू द हिल्स का मतलब क्या है कि ज़्यादा पीसफुल स्टेट में फिर से आप आ जाओ वापस। फोर्सेक दाउ द डिजर्ट ऑफ डेथ, यानी कि जो डिजर्ट ऑफ डेथ है उसे त्याग दो। वेर एवर द बर्निंग थर्स्ट, जहां पर भी उसकी प्यास हो, बर्निंग प्यास हो, बहुत ज़्यादा प्यास हो। फ्लेम्स इन द थ्रोट फॉर ब्लड फॉर द वाइल्ड डिजायर दैट किल्स, और जो तुम्हारे सीने, जो तुम्हारे थ्रोट में ब्लड की जो प्यास है उसे अपनी एक बहुत ही छोटे से नीच डिज़ायर के लिए मत उसे बढ़ने दो और उसे मार दो। मतलब वाइल्ड का मतलब है कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटी और नीच डिज़ायर, तो नीच से मतलब है हिंदी से है, ठीक है। सो इट सेज कि जो हमारे जो डिस्ट्रक्टिव पाथ ऑफ वॉर और ग्रीड है उन सबको हमें त्याग देना है। वे द ट्रेचरस सैंड्स ऑफ द रेबल सेरेस्टेस आर कर्स्ड, यहाँ पर क्या मतलब ट्रेचरस हम जानते हैं जो लोग आपको धोखा दे दें, यानी कि जो जो लोग विश्वासघाती हैं जिन्होंने अमेरिका को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, बाय द रेबल सेरेस्टेस आर कर्स्ड, मतलब वो सारे के सारे उन सबको, जो सेरेस्टस है कि उत्तरी अफ्रीका के एक सींग वाला सांप होता है, स्नेक है बेसिकली, ये उसके द्वारा, उस सेरेस्टर के द्वारा उन सबको रेबल किया जाएगा, उसको मतलब कर्ज किए जाएंगे वो, ठीक है। एंड द वेस्टेस आर स्ट्यून विद द बोन्स ऑफ फॉली एंड हेट, तो ये लाइनें कुल मिलाकर के आपको सब कहती हैं कि डिजर्ट इज सिंबॉलिक ऑफ द मोरल डीके एंड डेंजर। यहाँ पर जो सेरेस्टस है वो एक वेनमस स्नेक के लिए कहा गया है, जो जहरीला सांप है, ठीक है। तो अपने आप को, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हेट्रेड और फुलिशनेस से अपने आप को दूर करो एंड मेक अमेरिका ए गुड प्लेस टू लिव। रिटर्न वेयर द सनलाइट ग्लाइडेंस द प्लेस ऑफ ग्रीन, मतलब उस रास्ते, उस जगह पर वापस आ जाओ जहाँ पर सनलाइट आपको प्रसन्न करती है, रोशनी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक होप और होप जो है नेचर से, और लाइट है बेसिकली, पूरा सिंबलाइज करते हैं कि जो एक प्रसन्नता आएगी, जो होप रहेगी, इट रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट, ठीक है। देन वेयर द स्टार्स कम फोर्थ द हेरल्ड्स ऑफ द फेथ एंड फेथ, जहाँ पर आपको जो स्टार्स हैं वो भी एक फेथ और फेथ की अच्छी आपको सूचना देते हो। तो यहाँ पर एक तरह से प्ली है कि उस नेचर और होप में वापस चले जाओ जहाँ पर आपको गाइडेंस और डेस्टिनी मिले, ठीक है। तो ये लोगों को इन लाइनों में लोगों से एक्चुअली एक प्ली किया जा रहा है दैट यू हैव टू बिहेव दिस वे एंड द विंड्स ऑफ इटर्निटी फ्रॉम ब्रीथ फ्रॉम ए डे अनसीन। इसका मतलब क्या है, इट सजेस्ट ए टाइमलेस डिवाइन प्रेजेंस दैट ऑफर्स स्पिरिचुअल रिन्यूअल। So let us move on to the next stanza. Thou what hast thou to do with a time burnt and done. So यहाँ पे टाइम बर्न का मतलब है टाइम जो खराब हो चुका एंड डन इज गोन, है ना। तो यहाँ पर वाई अमेरिका शुड बी इन्वॉल्व विद द आउटडेटेड एंड डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज, तो अमेरिका को तो ऐसा नहीं बनना है। सो दैट इज द रीजन इट इज मूविंग द अमेरिकन पीपल अवे फ्रॉम सच डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज एंड आउटडेटेड थिंग्स। विद द ओल्ड सर्बोनियन बोग, तो सर्बोनियन मतलब जो सर्बियन है, बोग मतलब दलदल। द मार्शेस वर नेशंस वर लॉस्ट, तो यहाँ पर इट रेफर्स टू द हिस्टोरिकल ट्रैप, यानी कि जो सर्बोनियन बोग है इन इजिप्ट, उसको बताया है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ हिस्टोरिकल ट्रैप वेयर एम्पायर्स पेरिस्ड, यानी कि वहाँ पर पूरी की पूरी जो एम्पायर्स है वो ख़त्म हो गई, वैसा हमने नहीं बनना है। वार्निंग अगेंस्ट रिपीटिंग हिस्ट्री, मतलब ऐसा चीज़ें यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो वार्न कर रहे हैं कि इस हिस्ट्री को फिर से रिपीट ना किया जाए, राइट। वेयर वेलिंग्स आर हर्ड ऑफ द डेड ऑफ द स्लॉटर रोमन एंड हन, तो यहाँ पर वेलिंग से मतलब है रोना, है ना, ये रोने की बात को बताता है, यानी कि जो ऐसा देश पर हम बनाएंगे जहाँ पर हमने रोने की आवाज़ ना आए, ठीक है, जो लोग गुजर जाते हैं उनके लिए रोने की आवाज़ें ना आए, और साथ साथ ऐसा भी ना हो कि हमारे जो यहाँ पे
जो कॉइन्स हैं, जो हन का मतलब जो सोने के सिक्के होते हैं या कॉइन्स होते हैं, द करेंसी ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, उसकी भी आवाज़ ना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इट इवोक्स द हॉरर ऑफ पास्ट वॉर्स एंड एम्पायर्स, नॉट ओनली घोस्ट रिमेन्स। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को बता रहे हैं कि जो पहले पास्ट में हो चुका है, लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मनी हम ऐसा करें, है ना। एंड फॉस्फोरसेंट लाइट राइजेस इन द हैंड ऑफ स्टिकन घोस्ट। मतलब यहाँ पे फिर से वही बोल रहे हैं, इस पूरे लाइन का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि वॉर हो और ओनली घोस्ट ही ना केवल रह जाएं। ठीक है, सो ड्रीमिंग ऑफ स्प्लेंडर ऑफ बैटल दैट ग्लांस्ड फ्रॉम ए मिलियन शील्ड when he Caesar pillaged of lust of gold and hunger of power। तो यहाँ पर जो वर्ड है सीजर, इसे कैसर भी बोलते हैं क्योंकि ये वर्ड बेसिकली लैटिन से लिया है, सो दिस हैज़ द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। ग्रीक में इसको कैसर कहते हैं और लैटिन में दिस इज कॉल्ड सीजर, राइट। तो ये जो लाइनें हैं, दीज आर क्रिटिसाइजिंग इंपीरियलिज्म एंड कॉन्केस्ट ड्रिवन बाय ग्रीड एंड पावर। तो जो हमारे पास जो इंपीरियलिज्म ने जो हमें जख्म दिए हैं, उन सबको ये अमेरिकन्स के, उन सबको एक तरह से देखा जाए तो ये क्रिटिसाइज कर रही है। एंड द जायंट्स ऑफ गोथलैंड फेस्टर्ड एंड स्टैंग ऑन दिस स्ट्रेचिंग फील्ड एंड द गॉड्स ऑफ द लिविंग वर कर्स्ड टू वीक टू रिवील द आर। मतलब ये जाइंट्स ऑफ गोथलैंड का मतलब एक स्वीडिश व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, हाइट उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो उसे हम जाइंट ऑफ गोथलैंड कहते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जो इतना बड़ा, जिसे हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप में डीके ना हो जाए, क्योंकि फेस्टर्ड मतलब सड़ा हुआ, अपने आप में डीके ना हो जाए, ऐसे खुद इसमें से बदबू ना आने लगे, स्टैंक मतलब बदबू आने लगे, तो ऐसी वो ऐसा ना हो कि वो खुद ही पड़ा रहे। ठीक है, तो हमारा देश फिर से इसमें डीके होने लगे, यानी कि हमारा मतलब अमेरिका से है। एंड दी गोड्स आर लिविंग वर कास्ट टू वीक टू रिवील द आर। मतलब यहाँ पर जो इस तरह के वॉरियर्स हैं, बड़े बड़े वॉरियर्स भी डीके हो जाएं, और जो डिवाइन जस्टिस है उसको भी फेलियर हो जाए, वो भी एक बार जस्ट ना कर पाए, तो इतना दूर ना चले जाएं हम कि हमें भगवान भी वापस या ईश्वर भी हमें वापस रिकवरी का मौका ना दे, अगर हम इसी तरह से चलते रहे, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन, आपस में एक दूसरे से बैर झगड़ा अगर हमारा चलता रहा। हमारे से मतलब हम अमेरिकन का है। ठीक है, then O thou whom the snares of the king already encompasses the feet with the singing ropes, desperate with the old Egyptian slime, sorry, suggests America as being seduced by monarchy and corruption। तो अब जब मोनार्की और करप्शन रहेगा, सो दिस विल एक्चुअली फेंट द प्योरिटी ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो हमें ऐसे इस तरह के स्नेक्स, मतलब ऐसे जाल में नहीं फंसना है, राइट, हमें इस तरह के जाल में नहीं फंसना है। और कोई लोग हमें, जो ट्रेचरस लोग जो अभी तक हमने इसमें पोम में समझा, विद द सिंगिंग रोप्स वेस्परेंट, यानी कि हमारे कुछ पंखड़ियों से भरे हुए, कुछ फूलों से जड़े हुए कपड़े दिखा करके बताएंगे कि देखो अमेरिका को हम ऐसा बनाते हैं, और वो हो सकता है ट्रेचरस हैं और वो गलत तरह का लेके जाने की कोशिश करें, आपस में एक दूसरे से झगड़ा कराएं ऑन द नेम ऑफ रेशियल थिंग्स, स्लेवरी, इन सब को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें। तो उन सब में ना फंस के हमें अपने देश के लिए एक स्पिरिचुअल थॉट्स लेकर के आगे बढ़ना है, जिसमें सब लोग इक्वल रह सकें। बट दाउ हैज हार्कन टू गाइड टू द कनिंग वर्ड्स ऑफ शेम, टू द टेम्पर विद द स्पीच ऑफ गोल्ड एंड द प्रेज ऑफ द ड्रंकन थ्रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइनें हैं, इट सेज के अमेरिका हैज़ लिसन टू डिसीट एंड बीन टेम्प्टेड टू द वेल्थ एंड एम्प्टी प्रेज। मतलब अमेरिका ने जिन लोगों को सुना, डिसीट बातों को सुना, और साथ साथ उन्हें टेम्प्टेड बाय वेल्थ एंड एम्प्टी प्रेज, मतलब झूठी जो तारीफ़ें हैं ना, उनके बीच में आ गया वो, मतलब एक झूठी तारीफ़ों को पसंद करने लगे, जिससे कि अमेरिका ने अपनी जो रियल ट्रू अमेरिकनिज्म है उसको कहीं ना कहीं लूज कर दिया। Scornfully push from their hands the crown of a common fame, not made for thy peaceful brows, for thou went not born for wrong। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इट सेज जो विच इज़ द फ्लॉल्स ग्लोरी, यानी स्कॉनफुल पुश फ्रॉम द हैंड्स ऑफ क्राउन एंड द कॉमन फेम। यहाँ पे कह रहा है कि जो मुकुट को जो आपके हाथों में जो यश का मुकुट है आपके पास, जो आपके पास जो क्राउन है, उन सबको खुद हटा दो, अपने हाथों से खुद दूर कर दो। ठीक है, एंड was also known made for the peacefully brows of their of thou word
नॉट बोर्न फॉर रॉन्ग। और साथ साथ जो जो अमेरिका को फिर से पर्सोनिफाई करते हैं ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। और जो तेरे शांति जो पीसफुल ब्रोस के लिए, जो पीसफुल रहने के लिए नहीं बना है, जो मुकुट आपके पीसफुल रहने के लिए नहीं बना है, और जो कि तेरे न्याय के लिए वो उसने जन्म नहीं लिया है, उस मुकुट को दूर करके फेंक दो। मतलब कहीं सुनी गलत बातों में अपने देश के साथ ही धोखा ना करना। तो फॉल्स ग्लोरी को रिजेक्ट करो, वायलेंस को रिजेक्ट करो, और क्योंकि ये सब अमेरिका को सूट नहीं करता एज ए नोबल ओरिजिन। ठीक है। दाउ आर्ट द फ्रूट ऑफ द ग्रोनिंग साइकिल ऑफ होप एंड लव, टोल्ड ऑफ बाय मैडर्न प्रॉफिट्स हु नेवर beheld thy फेस। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि अमेरिका इज द रिजल्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ स्ट्रगल एंड ड्रीम्स। जो अमेरिका आया है बहुत सारे स्ट्रगल के, आपको ही पता है कि पहले से यहाँ पर ब्रिटिशर्स की, फ्रेंच की, रशियन आउटपोस्ट भी थे, बाकी इन दोनों की कॉलोनीज थी, स्पेनिश कॉलोनीज थी। सो दिस बेसिकली दे हैड टू स्ट्रगल ए लॉट टू रीच एट द पॉइंट वेयर द अमेरिका इज नाउ। ठीक है। तो इस तरह का जो सदियों का संघर्ष है, उन सपनों का परिणाम है जो कि आज हमने यहाँ तक देखा है। ठीक है। तो इसको ऐसे ही आसानी से नहीं जाने देना है। जो स्ट्रगल हमने किया उसको वैल्यू करते हुए एक अच्छा अमेरिका को बनाए रखना है, अच्छा अमेरिका बनाए रखना है। Who drew from the teeming earth and the fettherless sky above, that man was made to be free and to stamp under foot the maze। तो यहाँ पर एक तरह से विजन ऑफ फ्रीडम की बात की जा रही है, विजन ऑफ फ्रीडम एंड रिजेक्शन ऑफ टायरनी। ठीक है। तो मेस यहाँ पर एक पावर को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जिन्होंने अपनी मतलब पूरी जमीन को बंजर रहित मतलब फेटरलेस है ना तरीके से देखा, मेरा टीमिंग अर्थ जो है बंजरलेस जो है, जिसको आपने आकाश से देखा है। ठीक है। और उसे इस तरह का विचार लिया है कि हम इसे ऐसा बनाएंगे, बहुत उपजाऊ बनाएंगे धरती को। और मनुष्य जो है हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, दैट इज सेट फॉर टू बी फ्री, जो स्वतंत्र होने के लिए ही बना है। और सदा ये एक तरह से जो प्रतीक जो बेसिकली जो एक तरह से देखा जाए जो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। उसको ऐसा बताया जा रहा है कि दिस इज द विजन ऑफ फ्रीडम। ठीक है। और हमने जो टायरनी है, जो अत्याचार है, उसे अपने पैरों के नीचे दबा देना है। ठीक है। हाउ शुड दाई इनोसेंट आईज एवर लियर विद ए रेडेंड लुक। जो तेरी यहाँ पे इस तरह से कहा जा रहा है, तेरी जो मासूम आंखें हैं, ये मतलब इट कैन नॉट बी रेडेंड, ये लाल कैसे, खून से लाल कैसे हो सकती हैं। ठीक है। या फिर और दाई हेयर बे सेंटर सेव ऑफ द मेजर्ड सी, मतलब जो तेरे बाल हैं ये अनंत जो समुद्र है, समुद्र की सेंट के अलावा कोई और सुगंध नहीं दे सकता। मतलब हमारे जो इसमें जो अमेरिका है उससे कोई और दुर्गंध नहीं आ सकती। ये अच्छा ही है, ये आपको अनंत समुद्र की खुशबू देता है और साथ साथ समुद्र के अलावा इसमें कोई और सुगंध नहीं हो सकती। ठीक है। सो अमेरिका शुड रिमेन इनोसेंट एंड फ्री इट सेज। और ये किसी भी तरह के ब्लड शेड या आर्टिफिशियलिटी से रंगीन ये नहीं होना चाहिए। और दाई फीट नो द वेज ऑफ डिसीट रोट आउट इन द मर्डरस लुक। ठीक है। बाय मोनार्क हु श्रैंक फ्रॉम द स्कोर्जिंग एंड डूम और दाई स्ट्रेंथ एंड दी। सो अमेरिका यहाँ पर जो कह रहा है शुड नॉट फॉलो द अमेरिका शुड नॉट फॉलो द डिसीटफुल पाथ। ठीक है। तो धोखेबाजी वाला रास्ता नहीं अपनाना है। धोखेबाजी रास्ता मतलब पुराने एम्पायर्स का, उन दुराचारियों अत्याचारियों का, टायरेंट्स का रास्ता आप अमेरिका को नहीं इख्तियार करना है, नहीं अपनाना है। नेक्स्ट लाइन सेज beloved of time and of fate, cherish of justice and truth, yet thou art free to choose the ill and to die। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये बेसिकली इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अमेरिका इज़ ब्लेस्ड बट हैज़ फ्री विल इवन टू चूज डिस्ट्रक्शन। तो आप जो करने जा रहे हो अमेरिका कैन चूज़, ये हमारे हाथ में है कि आपने डिस्ट्रक्शन को चूज़ करना है या फिर यहाँ पर अमेरिका को ब्लेस करना है, फ्री विल के साथ में रहना है। ठीक है। टू स्क्वांडर द ब्यूटी ऑफ शायर, to squander the beauty of for hire, to waste the eternal youth, for thou art eternal if thou heedst them not
but pass by. सो इट इज़ अ वार्निंग, है ना. डू नॉट सेल योर सेल, यानी कि अपनी जो 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 सोल है उसे मत बेचो, वो भी टेम्पररी गेन के लिए. अमेरिका एक ग्रेटनेस है. अमेरिका की जो ग्रेटनेस है वो इसी के साथ है, मतलब ये अपने आइडियल्स के साथ में सच्ची है, अपने आइडियल्स के साथ बनी हुई है. Pass and return to the mountains of freedom and peace, where heavenward flame the fires, where the torches may be relumed. तो ये बेसिकली ऐसे कह रहा है कि आगे बढ़ो और लौट चलो कि हम स्वतंत्रता की तरफ, है ना. यानी कि स्वतंत्रता से कहाँ, हम स्वतंत्रता के पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर हम लौट चलें, जो कि जहाँ पर एक्चुअली स्वर्ग की जो अग्नियाँ हैं, और वहाँ पर हम उन मशालों को, टॉर्चेस को फिर से रिल्यूम कर सकते हैं, जला सकते हैं. यानी कि वहाँ आगे बढ़ चलो जहाँ पर स्वतंत्रता की मशालें हैं, उनको हम फिर से जला सकें. ठीक है. तो इससे मतलब इससे जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि हमने उन आइडियल्स और लिबर्टी के साथ को रिटर्न करना है, जहाँ पर हम अपनी लाइट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की ज्योति को फिर से रिकंडल कर सकें, फिर से न्याय की ज्योति को जला सकें. ठीक है. टू गर्डल द वर्ल्ड विद द लाइट that was kindled in older Greece, or that the spark may be scattered wherever injustice has doomed. तो मैं थोड़ा सा इसको वैसे हिंदी में समझाता हूँ कि उस प्रकार के संसार को घेर लो जो प्राचीन यूनान से हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी, प्रज्वलित हुआ था. ठीक है. एंड वो जो हमारे पास चिंगारियाँ हैं, ठीक है, जो स्पार्क्स हैं, वो सब को स्कैटर करो, ऐसी जगह बिखेर दो जहाँ पर इनजस्टिस हैज़ डूम्ड, जहाँ पर अंधकार ने अपने आप को फैलाया है. यानी कि उन चिंगारी, उन रोशनियों को वहाँ पर बिखेर दो जहाँ पर अंधकार ने अपना एरिया, मतलब अंधकार में किया था जिस जगह को, जिन चीज़ों को. तो यहाँ पर बेसिकली मतलब है एनलाइटनमेंट से कि जो अमेरिका के पास जो अपनी जो एनलाइटनमेंट है एंड जस्टिस है, ठीक है, जैसे कि ग्रीस में एक बार ऐसा हुआ था, उस तरह से स्प्रेड कर दो, फैला दो पूरे में. ठीक है. डार्कनेस टू बी द पोर्शन ऑफ दोज हु फैमिश फॉर लाइट, बी दाउ द ग्रेट रॉक्स शैडो कास्ट इन वेरी लैंड. तो यहाँ पर जो बेसिकली कहने का मतलब है, जो हमारे पास अंधकार हैं, ठीक है, जो अंधेरे हैं, उनका भाग्य बने जो प्रकाश के लिए, मतलब फैमिश मतलब वैसे तो भूखे के लिए होता है, लेकिन जो अंधकार के प्यासे हैं, ठीक है, जो यानी कि हमें बेसिक अंधकार है, वो उनका भाग्य जो बने जो प्रकाश के लिए तरसते हैं. ठीक है. और उस महान चट्टानों की छाया बन के जो थकी हुई धरती पर शरण देती है, मतलब उस तरह की एक वो बनो, शैडो बनो, मतलब शैडो बनो जो थकी हुई धरती को शरण देती है ना. तो यहाँ से जो लाइन है वो थोड़ा सा ऐसा कहना चाह रहा है कि जो लोग ओप्रेस्ड हैं उनके लिए रिफ्यूजी बनो, उनके लिए होप बनो. बी दाउ ए स्टार ऑफ गाइडेंस, गाइड ए विंट्री नाइट, बी दाउ दाई सेल्फ एंड दाई सेल्फ अलोन एज हेवन पाथ प्लान्ड. तो इन लाइनों से जो पोएट कहते हैं, वो कहते हैं बी ए गाइडिंग लाइट एंड स्टे ट्रू टू योर डिवाइन पर्पस, मतलब एक मार्गदर्शक प्रकाश बन और अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए हमेशा सच्चा रहे. तो ये जो पोएम है, ये कुल जो यहाँ पर ये पोएम पूरी ख़त्म हो जाती है. और यहाँ पर जो है बेसिकली इस पूरे पोएम में ऐसा बताया गया है कि जो थोड़ा सा जो चीज़ें गलत हुई हैं हिस्ट्री में या हो रही हैं, उनको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है, और साथ साथ एक तरह से कुछ जगहों पर प्ली किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि हम अमेरिका को एक अच्छा प्लेस बनाए रहने के लिए और लोगों के लिए सहानुभूति और हारमोनियस तरीके से हम रह सकें, और एक अच्छे अमेरिका को हम फिर से बनाए रखें, और एक अच्छे अमेरिका को आगे जो बेसिकली अच्छे से फ्लरिशिंग हो सके उसको जन्म दे. तो इस वीडियो से बस इतना ही. आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. इन केस इफ़ यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा. And please do support to me by subscribing the channel, and also like if you really liked the video. You can dislike as well if you don't like. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye.